السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم مودی نے بلائی اعلیٰ سطح میٹنگ، صورتحال کا لیا گیا جائزہ، پاکستان کو سخت جواب دینے کی حکمت عملی پر غور۔ پاکستان سرحدی علاقوں میں فوجی نقل و حرکت تیز کر رہا ہے، وزارت داخلہ کی پریس بریفنگ۔ صوفیہ قریشی اور ویومیکا سنگھ نے کہا منہ توڑ جواب دے رہا ہے ہندوستان۔ پاکستان اسلام کے نام پر جھوٹی جنگ کر رہا ہے، اسد اویسی کا ریمارک، کہا پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار چھین لیے جائیں۔ اور ہند پاک جنگ نے شیئر مارکیٹ تباہ کر دیا، 2 دن میں 7 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان۔ ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو یہاں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں موجودہ سرحدی صورتحال کا جائزہ لیا اور پاکستان کی فوجی مہم جوئی کا جواب دینے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم مودی کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ہونے والی میٹنگ میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان، آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی، فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وزیر اعظم مودی کی یہ دوسری ملاقات ہے۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی مسلسل اشتعال انگیزی پر وزارت خارجہ، فوج اور فضائیہ نے آج ایک بار پھر پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر خارجہ سیکریٹری وکرم مسری کے ساتھ کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے پاکستان کو بے نقاب کر دیا۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پاکستان کس طرح مسافر طیاروں کی آڑ میں اپنی ناپاک سرگرمیاں انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے اور لائن آف کنٹرول پر فوجی تعیناتی بڑھا کر حالات کو مزید بگاڑنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. پریس بریفنگ میں کرنل صوفیہ قریشی نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے جان بوجھ کر ہندوستانی فضائی اڈوں کو نشانہ بنانے کے بعد ہماری افواج نے فوری رد عمل میں ٹیکنیکل تنصیبات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ریڈار سائٹس اور اسلحہ ذخیرہ کرنے والے مراکز پر حملے کیے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے پاکستان پر الزام لگایا کہ اس نے لاہور سے اڑان بھرنے والے شہری طیاروں کی آڑ میں بین الاقوامی فضائی راہداری کا ناجائز استعمال کیا تاکہ اپنی حرکتوں کو چھپا سکے۔ لانگ رینج ویپنز، لوٹرنگ منیشنز اور لڑاکو ومانوں کا اپیوگ کر بھارتی سینیہ ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ نینترن ریکھا پر بھی ڈرون گھسپیٹ اور بھاری کیلیبر ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। इस मौके पर विंग कमांडर व्यूमिका सिंह ने कहा, हिंदुस्तानी अफवाज ने सिर्फ निशानदेही शुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और ये कार्रवाई निहायत दुरुस्तगी के साथ की गई। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी इत्तलात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के S-400 सिस्टम और सिरसा व सूरतगढ़ के हवाई अड्डों की तबाही जैसे दावे किए जिनकी कोई हकीकत नहीं। हिंदुस्तान इन बेबुनियाद दावों को सख्ती से मुस्तरद करता है। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure,
command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Dehrangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. उधर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई शहरों में जुमे की रात पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया। इसके पेश नज़र शहरों में ब्लैक आउट नाफिज कर दिया गया और सायरन बजाए गए। आवाम से अपील की गई कि वो बाहर ना निकले और महफूज मुकामात पर रहें। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू, नौशहरा, सांबा, उरी, राजस्थान के पोखरान और पंजाब के पठानकोट में ड्रोन हमले हुए हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी फौज ने तबाह कर रख दिया। जम्मू खित्ते में धमाकों और सायरन की आवाज़ें सुनने के बाद जुमे को मुसलसिल दूसरी रात शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया। ताज़ा तरीन पाकिस्तानी जारहियत के दरमियान जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जहां से मैं हूं वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाज़ें, गालिबन भारी तोपखाने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। उन्होंने अंधेरे में डूबे हुए शहर की एक तस्वीर भी पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट है, पूरे शहर में सायरन की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा, जम्मू और उसके आसपास के तमाम लोगों से मेरी आजिज़ाना अपील है कि बराह करम सड़कों पर ना निकले, घर पर रहें या करीबी जगह पर जाएं जहां आप अगले चंद घंटों के लिए आराम से रह सकते हैं। अफवाहों पर कान न धरें, बेबुनियाद या गैर मुसद्दिक़ा बातें न फैलाएं और हम मिलकर इससे निपटेंगे। LOC के पास मौजूद लोगों ने भी पाकिस्तान की जानिब से जारी बिला इश्तियाल फायरिंग की तफसील बताई। देखें तो 37 साल से जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो 40 साल से यहाँ कत्लो गारत कर रहा है और बहुत बार भारत की सरकारें जो रहीं और ख़ुसूसन तौर पर जो अब सरकार है उनको ये संदेश भी दिया और वार्तालाप के लिए भी मुझे लगता है कि कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लातों के भूत बातों से ही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्पेसिफिक आपने यहाँ मैं इस समय परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने आया हूँ, ये हमारे बहुत ही एक अच्छे और होनहार ऑफिसर रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने काम किया है। वेरी डिसेंट एंड वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी अपराइट ऑफिसर। तो इसी तरीके से मैंने उनके परिवार के साथ जो संवेदना है वो प्रकट की और जो बाकी भी शहीद हुए हैं पुंछ में, आपने देखा है कि ये बड़ी कायरतापूर्ण हरकत है पाकिस्तान की कि वो सिविलियन पे अटैक कर रहा है और हिंदुस्तान अभी भी जो है वो रक्तो-जहर से काम ले रहा है। वो स्ट्रेटेजिकल उस तरीके से अभी तक सिविलियन को नहीं छेड़ा है, तो इसकी जितनी वर्सना की जाए इतनी कम है। जम्मू में हमने ये भी देखा कि कई सिविलियन हाउसेस पर भी शेलिंग हुई है, उसमें भी हानि हुई है, क्या कहना? मुझे लगता है 7, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो 7 जगह पे तो मेरे ही सिविलियन पे और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा साहब हैं, उन पे मुझे लगता है कि वो डेलिबरेटली
जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में किया, उसी तरीके से वो डेलिबरेटली चाहते हैं कि यहाँ कोई ना कोई कॉम्युनल फसाद भी, और जो उनकी अप्रोच रही है, नाम तो उसका पाकिस्तान है लेकिन आगे ना लगा देना चाहिए उसके साथ, ना पाकिस्तान है वो, नापाक है वो, और उसकी हरकतें भी जो हैं वो नापाक हैं। तो मुझे लगता है कि अब उसको सबक जो है वंस फॉर ऑल ये डिसाइड करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंद पाक जंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर झूठी जंग कर रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हर महाज पर इस्लाम को बदनाम किया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि पाकिस्तान के खिलाफ शदीद कार्रवाई करते हुए इसके न्यूक्लियर हथियार छीन लिए जाएं। वो हैदराबाद में मुनक़िदा सहाफ़ती बरादरी के एक अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है। इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी, उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहां सीसा पिला हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला हुई दीवार भूल गए आप। अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है। को जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी है। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सदर मुकाम श्रीनगर में हफ्ते की सुबह कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। धमाके कम से कम आधे घंटे तक वक्फे से जारी रहे। अगरचे धमाके कहां हुए इस हवाले से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जुमे की शाम कश्मीर के बारामूला से लेकर गुजरात के भज तक बैनुल-अक़वामी सरहद और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर 26 मुकामात पर ड्रोन देखे गए और उन्हें मार गिराया गया। इस दौरान जम्मू में हुई शलबारी से कई मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ फौजी कार्रवाई के पेश नज़र हिंडन, श्रीनगर, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट और भज जैसे 32 हवाई अड्डों पर शहरी हवाबाजी की सरगर्मियां 14 मई तक आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज हफ्ते को कहा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इससे मुंसलिक हवाबाजी के अफसरान ने ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान के 32 हवाई अड्डों को 9 से 14 मई तक तमाम शहरी परवाज़ों के लिए आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। हिंद पाक कशीदगी के दरमियान कई दाखिला इम्तिहानात मुलतवी किए जा रहे हैं। 10 मई को होने वाले कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटक इम्तिहान कई शहरों में मुलतवी कर दिए गए हैं। इनमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के 12 शहर शामिल हैं। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी 10 और 11 मई को होने वाले अपने दाखिला इम्तिहानात को जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए रीशेड्यूल कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने वाज़े किया है कि जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए एक मुतबादिल तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इससे पहले HPTU भी HPCET इम्तिहान 2025 मुलतवी कर चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने भी इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है। 15 मई से मुनक्किद होने वाले सभी इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं, जिसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग वगैरह के इम्तिहानात शामिल हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने शेयर बाजार पर गहरा असर डाला है। पिछले 2 कारोबारी दिनों में बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से सरमायाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये गिरावट ख़ास तौर पर जुमेरात की रात उस वक्त तेज़ हुई जब पाकिस्तान ने जम्मू
پٹھان کوٹ اور دیگر علاقوں میں ڈرون اور میزائل حملے کیے، جس کے جواب میں ہندوستانی فوج نے بھی جوابی کارروائی کی۔ ان حملوں کے بعد سے بازار میں زبردست بے چینی دیکھی گئی اور سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر حصص بیچنے شروع کر دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کار نے جمعرات کو بھی ہندوستانی ایکویٹیز میں خالص خریداری کی، جبکہ مقامی چھوٹے سرمایہ کار نسبتاً محتاط نظر آئے۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم مودی نے بلائی اعلیٰ سطح میٹنگ، صورتحال کا لیا گیا جائزہ، پاکستان کو سخت جواب دینے کی حکمت عملی پر غور۔ پاکستان سرحدی علاقوں میں فوجی نقل و حرکت تیز کر رہا ہے، وزارت داخلہ کی پریس بریفنگ۔ صوفیہ قریشی اور ویومیکا سنگھ نے کہا منہ توڑ جواب دے رہا ہے ہندوستان۔ پاکستان اسلام کے نام پر جھوٹی جنگ کر رہا ہے، اسد اویسی کا ریمارک، کہا پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار چھین لیے جائیں۔ اور ہند پاک جنگ نے شیئر مارکیٹ تباہ کر دیا، 2 دن میں 7 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان۔ خبر نامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ منان جابری کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔